Welcome class, this is your grammar class and I am your teacher Sarjon. In this video you are going to learn more about clauses. We have already learned about phrases and clauses in the previous class. This video is all about types of clauses because we are focusing on clauses. So clauses, as you have understood, a clause is a group of words which has its own subject and predicate, and it functions as a part of any sentence, whether it will be complex or it will be compound sentence. So it forms a part of sentence. So let us learn about its types in further sentence examples. There are few sentences, sentence 1, 2 and 3. So it will be a revision also. Let's see number 1. I graduated last year. ये एक सेंटेंस है. I graduated last year. ये एक सिंगल क्लॉज सेंटेंस है. जैसे कि आप लोगों ने समझा था, एक क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, graduated, verb, last year, object. So this is one complete sense of a sentence, and subject, verb and object, that means subject and predicate is here. So this is one closed sentence. In sentence number 2, when I came here, जब मैं यहाँ आया, इसमें देखिएगा I subject, came आने का काम, verb, here object. So this is complete clause, a single clause. But in this sentence there is one more sentence adding here. I saw him. I subject, saw verb and him object. So there are, you see, two sentences in a single sentence. So there are two clauses. When I came here is one clause. The other sentence of this part of the sentence is also the another second clause. So two clauses are here. यहाँ आप दो clause देख रहे हैं, लेकिन यहाँ दो clause हैं. अगर हम I saw him बोलते हैं तो सवाल उठता है किसे देखा मैंने, तो उसको कम्प्लीमेंट्री कौन करता है? ये फर्स्ट क्लोज. व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया तब मैंने उसे देखा. इस तरह ये दोनों सेंटेंस अलग अलग क्लॉज तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. तो ये हो गया दो क्लॉज, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड करने वाला क्लॉज है. तो क्लॉजेस का यहाँ आप वेरिएशन देख रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस में ये हो गया था एक सिंगल क्लॉज, और सेकंड सेंटेंस में था एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है कोई क्लॉज. इन सेंटेंस नंबर 3 यू विल सी it is written here as 3 clause sentence. That means this sentence, in this single sentence, has 3 clauses. How come? When I came here last year, so this is first clause. I saw him, so this is second clause, and after this and, he was graduated. So this is one more complete sentence. Third sentence means third clause. So in first clause, I is subject, came is verb, and here last year is object. So technically it is subject and predicate of its own. So first part of this is first clause. I saw him. I is subject, saw is verb, him is object. Therefore technically it has its own predicate and subject also. So it is second clause. After this and, after this conjunction, he was graduated. He is subject, he करता है, was verb है, और साथ में helping verb के साथ में ये main verb है. That means after subject all this verb or object, or even it is single verb, it is called predicate. So each of these parts are not without subject and predicate, but with subject and predicate. So each of these are clauses. First clause, second clause and the third clause.
सो देयरफॉर 3 क्लॉज सेंटेंस। लेकिन अगर देखेंगे इनको ध्यान से, इनका जो मीनिंग होता है कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई क्लॉज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे व्हेन आई केम हियर लास्ट ईयर, जब मैं लास्ट ईयर आया, एक क्लॉज तो है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना है, लेकिन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन माइंड में बैठता है कि व्हेन आई केम हियर लास्ट ईयर, तो क्या हुआ? लास्ट ईयर आया तो क्या हुआ? तब जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड क्लॉज है, वो इसको कंप्लीट करता है, आई सॉ हिम, जो कि अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। इस तरह ये पहला क्लॉज आई सॉ हिम वाले क्लॉज का एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, इसीलिए इस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, जो कि हम आगे जानेंगे इसके टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में। एंड के बाद जो सेंटेंस है ही वॉज ग्रेजुएटेड, अगर हम ही वॉज ग्रेजुएटेड बोलते हैं तो बस सिंपली लगता है कि वो ग्रेजुएट हो चुका है, इसमें और कोई सवाल नहीं पैदा होता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लोज, वो अपना एक फ्री क्लोज है, किसी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है। तो इस तरह हमने देखा सिंगल क्लोज्ड सेंटेंस, 2 क्लोज सेंटेंस एंड 3 क्लोज सेंटेंस। सिंगल क्लोज खुद में इंडिपेंडेंटली स्टैंड होता है, 2 क्लोज सेंटेंस में एक दूसरे पर सेंटेंस डिपेंड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। थर्ड जो सेंटेंस है 3 क्लोज सेंटेंस, इसमें भी हम देखते हैं एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, वो मीनिंग पर डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट क्लोज है या डिपेंडेंट क्लोज। और वही हम क्लोज के टाइप में आज हम जानने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्लोज में। सो टाइप्स ऑफ क्लोज आर मेनली 2 टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट जो खुद में अकेले में एक पूरा संपूर्ण एक कंप्लीट मीनिंग देता है, वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। डिपेंडेंट क्लोज वो है अगर सेंटेंस लंबा है तो उसको हम कुछ ना कुछ कंजक्शंस या फिर कुछ ना कुछ प्रोनाउन लेकर के ऐड करते हैं और सेंटेंसेस, और एक लंबा सेंटेंस बनाते हैं। तो दोनों क्लॉजेस एक दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं, वैसे क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। आगे हम इसमें और भी देखेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं क्या। इसके डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। An independent clause functions on its own, मतलब जो स्वतंत्र क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है रेगुलर सेंटेंस की तरह, सिंगल क्लॉज सेंटेंस की तरह। इन अ सेंटेंस 2 independent clauses can be connected by the coordinators, और अगर डबल क्लॉज हैं, सेंटेंस लंबा है, 2 क्लॉज हैं वहाँ, तो उनको स्पेशली एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, येट, इन सब कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटर से ऐड किया जाता है स्पेशली। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट क्लॉज हम देख रहे हैं, अपना जो स्वतंत्र क्लॉज है, ही इज अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वाइज मैन ऑब्जेक्ट। यहाँ देखते हैं अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एंड से जुड़ा है, एंड के बाद वाले हम क्लॉज को देखते हैं, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब पसंद करना, हिम अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। और ये दोनों सेंटेंस अलग अलग अपना मीनिंग देते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। आई लाइक हिम अगर आप बोलते हैं मैं उसे पसंद करता हूँ, कोई सवाल और आगे नहीं है, क्यों पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते हैं, ये इसमें नहीं है। ही इज़ अ वाइज मैन अगर बोलते हैं, वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति है, यस ही इज़ अ वाइज मैन एंड नथिंग एल्स। तो इस तरह इनका मीनिंग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। इसीलिए अगर एंड से जोड़ा हुआ है तो बोथ द क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज़ श्योर। नेक्स्ट, कैन यू डू इट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप कर सकते हैं, सवाल है ये।
यस और नो, बस उतना ही उसका आंसर है, इसमें और दूसरे सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डू इट प्लीज़, इसे कर दीजिए कृपया। यू डू इट प्लीज़, सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसका अपना है। नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा आइए हम समझते हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लोज, आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन, मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। इसमें और कोई दो मत है ही नहीं, देर इज़ नो डिलेमा, देर इज़ नो अदर क्वेश्चन। मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, बस फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट, बट आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास पैसा नहीं है, इसमें और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सो दीज टू सेंटेंसेस आर independently standing here but forming a complete sentence, a long sentence, and that long sentence is I want to buy a phone but I do not have enough money. यहाँ but and ये conjunctions लगाए जा रहे हैं, इनको आपको ध्यान देना है। He went to London, वह लंदन चला गया तो चला गया। He visited the Lords, वो लॉर्ड्स से मिला तो मिला। वह लंदन गया और लॉर्ड्स से मिला। ये दोनों अलग अलग मीनिंग है और खुद में ही स्टैंड हो सकते हैं, इनको हम अलग अलग भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस इस सेंटेंस को लंबा बनाया गया है एंड जोड़ करके, नहीं तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट, एलेक्स स्माइल्स, एलेक्स मुस्कुराता है। ही सीज हर, एलेक्स उसे देखता है। ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं और इनका अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, सो इंडिपेंडेंटली ये स्टैंड होते हैं। यहाँ 1 की जगह 2 होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लोज क्या है, कैसे बनता है डिपेंडेंट क्लोज। ए डिपेंडेंट क्लोज कैनॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन, अकेला ही ये सेंटेंस नहीं खड़ा रह सकता है, मीनिंग नहीं दे सकता है, क्योंकि अकेला सिंगल क्लोज अगर कोई ना कोई सवाल पैदा करता है जिसका आंसर आपके दूसरे क्लोज में होगा उसी सेंटेंस के, तो ये डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। यही यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। डायरेक्टली सेंटेंस में हम चलते हैं, चलिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज लुकिंग एट डायना, जब मैं डायना की तरफ देख रहा था। आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज लुकिंग ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, एट डायना ऑब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, यानी कि ये एक कंप्लीट क्लॉज है, सेंटेंस है। लेकिन व्हेन जब लगा दिए हैं तो इसका मीनिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लॉज में क्या होता है, जब मैं डायना की तरफ देख रहा था। तो डायना की तरफ जब मैं देख रहा था तो क्या हुआ, कुछ तो हुआ, ये सवाल आता है माइंड में। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लॉज, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस one complete sentence answers the first clause. I had an accident, I subject, had verb, an accident object, तो इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये भी एक क्लॉज है, लेकिन डिपेंड करता है एक दूसरे के साथ खड़े होने में, अकेला नहीं। आई हैड एन एक्सीडेंट, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। सवाल होता है कब, व्हेन आई वॉज लुकिंग एट डायना। अगर इसको हम बोलते हैं पहले व्हेन आई वॉज लुकिंग एट डायना, व्हाट हैपेंड, देन नेक्स्ट आई हैड एन एक्सीडेंट, तो एक दूसरे के पूरक हैं ये। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, समझते हैं। आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। आई सब्जेक्ट, नो जानने का काम वर्ब, मैन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये एक सिंगल क्लॉज है। मैं उस आदमी को जानता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एक क्लॉज है ये। हु स्टोल द वॉच, हु मतलब कौन, वो मैन सब्जेक्ट हो गया, स्टोल वर्ब हो गया, किस चीज़ को चुराया, वॉच को। तो यहाँ से देखिएगा ये दो पार्ट है सेंटेंस का, दो क्लॉज हैं, लेकिन दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं है। आई नो द मैन कहने का
मतलब है मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। सवाल आता है किस व्यक्ति को, विच मैन डू यू नो। तब हम जवाब देते हैं हु स्टोल द वॉच, जिसने घड़ी चुराई। और ये सेंटेंस उस क्लॉज को कंप्लीट करता है कि किस व्यक्ति को। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है मीनिंग क्लियर करने के लिए। अगर हम हु स्टोल द वॉच, आई नो द मैन, अगर ऐसा बोलते हैं जिसने उस घड़ी को चुराई है किसने, उस आदमी ने जिसे मैं जानता हूँ। तो एक दूसरे पर डिपेंड है ये क्लॉजेस। ऐसे ही बाकी के जो ये सेंटेंसेस हैं आप इसको स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, ले सकते हैं, और इसमें अपना सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और दो सेंटेंसेस हैं तो कहाँ से ये सेंटेंस सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्लॉज है, फर्स्ट पार्ट है, कैसे डिपेंडेंट है वो आप लोग कर सकते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, एक दूसरे पर निर्भर करता है। सो दिस इज independent and dependent clause, one of the types of clauses. There are more and other types of clauses, we'll see it in other class. मेन डिफरेंस कहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा, अगर कोई क्लॉज, दो क्लॉज इन कंजंक्शन से अलग होता है, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट एंड सो, तो वो निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। और अगर बाकी जो कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, बोथ, आइदर और, नाइदर नोर, या फिर इस तरह के सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, तो वो डेफिनेटली डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो इनको ध्यान रखेंगे। आपके एग्ज़ाम्स में जो आने वाला है आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और उसमें हो सकता है डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाए, ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा। या फिर जो आने वाले और भी मोर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उनका ऑप्शंस आपके पास रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट क्लॉजेस। सो वी हैव अंडरस्टूड फ्रेज but we have to focus on clause. So this is it. Thank you very much. We'll meet in the next class.